नमस्कार, मैं सीमा महाजन ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ EW YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, there is a profit of 20% on the cost price of an article. The percent of profit when calculated on selling price ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 20% ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ 20% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ? ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 100 ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? 120, ਤਾਂ ਹੀ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 20/120 into 100। ਇਹ ਕੈਂਸਲ 6 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50। 50/3 ਦਾ ਮਤਲਬ 16/2/3%। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 16/2/3%। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अगला क्वेश्चन है, a trader who marks his goods up to 50% offered a discount of 20%. What profit percent the trader makes after offering the payment? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ MRP 50% ਵਧਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 50% ਹਾਈਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 150। ਹੁਣ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 20% ਆਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। 20% ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ 20% ਆਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 30 ਰੁਪਏ। 30 ਰੁਪਏ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ 150 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 150 ਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ ਤੇ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। 120 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20% ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੂ ਮਾਰਕਸ ਹਿਸ ਗੁੱਡ ਅਪ ਟੂ 50% ਮੀਨਸ ਕਿ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੇ 150 ਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾ ਲਿਆ। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 150। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ 20%। ਡਿਸਕਾਊਂਟ 20% ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ 150 ਦਾ 20% ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 30 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤੇ। 30 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦੇਤੇ? ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 120 ਰੁਪਏ। 150 ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ, 30 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ 120। 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 120 ਚ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 100 ਪਿੱਛੇ, ਮੀਨਸ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਫ ਅ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਮਾਰਕ ਹਿਸ ਆਈਟਮ A% above the cost price means cost price ਤੋਂ A% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ? 20%। ਤਾਂ A minus B minus AB upon 100 ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 50 minus 20 minus 50 to 20 1000 1000 upon 100। 50 minus 20 minus 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 20%। ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾय ਸੈਲਿੰਗ ਅ ਕਾਰ ਫॉर ₹64,000 ਮੀਨਸ 64,000 ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ।
मिस्टर राव लॉस 20% दैन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। लॉस का मतलब कि 20% नुकसान हो रहा जे कोई 64,000 की चीज बेचता पाया, मीन सैलिंग प्राइस की आएगा 80% ऑफ सीपी। ठीक है, सीधा जो कंसेप्ट है कि 100 वाली चीज जो आप 80 च बेचांगे तो लॉस होएगा। ठीक है, कितना लॉस 20 रुपए का, मीन लॉस कितना हो रहा है, 20% लॉस हो रहा, मीन सैलिंग प्राइस इज 80% ऑफ सीपी। सैलिंग प्राइस कितना है, 64,000। 64,000 के बराबर है 80% ऑफ सीपी। ठीक है, इतने कटिंग हो रही है 8 8 64 800 ते कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 80,000। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 80,000। आंसर कितना आएगा 80,000। ठीक है, जेकर अपने इत्थे प्रॉफिट हुंदा ते सैलिंग प्राइस की हो जानी सी 120% ऑफ सीपी, क्योंकि लॉस है सैलिंग प्राइस की हो जाएगी 80% ऑफ सीपी। 20% लॉस का मतलब की है कि आप 100 वाली चीज 80 रुपए दे विच बेच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960, सेलिंग प्राइस कितना है 960 रुपए, अ मैन इनकर अ लॉस ऑफ 4%। 960 रुपए की जो कोई चीज बेची जा रही है तो 4% का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछा, वही सेलिंग प्राइस की हो जाएगा 96% ऑफ सीपी। 4% का लॉस का मतलब की है कि 100 वाली चीज आप 96 च बेच देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 960 रुपए, 96 अपॉन 100 इंटू सीपी कटिंग हो जाएगी तो कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है 1000 रुपए। ठीक है, 96 के नाल ये कटिंग हो रही है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 रुपए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन सी। जो भी लॉस होवे, जे 4% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 96% ऑफ सीपी, 10% का लॉस होवे सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ सीपी। बस ऐसे नाल आपां क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इत्थे क्वेश्चन अगला की है 5th क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 95% ऑफ सेलिंग प्राइस की मतलब है आपा जे सोचिए सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 95 रुपए। 100 पीछे है ना, 95% परसेंट का मतलब होंगे पर 100। 100 रुपए दे पीछे कितना 95 रुपए, ते इत्थे प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है 5 रुपए का। ते प्रॉफिट परसेंट किहदे ते हुंदी है कॉस्ट प्राइस ते 5 अपॉन 95 इंटू 100, ये कितना होएगा 1900 अपॉन 19 का मतलब है 5.26। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट परसेंट कितना है 5.26। बड़े सिंपल क्वेश्चन ने जे ਤੁਹਾਨੂੰ कंसेप्ट आंदे ने। ठीक है, तो कंसेप्ट के फॉर्मूलेज याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन बॉट 20 डजन एग्स फॉर रुपीज 720। 720 रुपए दे 20 दर्जन एग्स खरीदे ने। What should be the selling price of each egg? Selling price each egg means one egg दी कढ़नी है। If he wants to make a profit of 20%, 20% profit का मतलब आपा 100 वाली चीज 120 रुपए च बेचिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120% ऑफ सीपी। ਇਹ बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ते बहुत सारे क्वेश्चंस दे विच अप्लाई हुंदा है। किन्ने दे खरीदे सी 720 रुपए दे, किन्ने दे खरीदे सी 720 दे। ये आ गया अपने को सेलिंग प्राइस, पर यह सेलिंग प्राइस किहदा है 20 डजन एग्स। मैं तो ईच एग मींस एक एग दा कढना है, मींस 12 इंटू 72 नु आपां डिवाइड कर दिए 20 इंटू 12, 20 दर्जन है। 20 नु 12 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि एक दर्जन दे विच 12 हुंदे ने ते यह की आ गया 3.6। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3 रुपए 60 पैसे। एक एग आपां किन्ने दा बेच रहे हैं 3 रुपए 60 पैसे दा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कीमत ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 20 ਡਜ਼ਨ ਐਗਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ अर्न ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 20% ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ 120% ਆਫ ਸੀਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन सॉल्व करता। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 210। यह डिफरेंस दिता है, डिफरेंस एसपी एंड सीपी दे विच। इफ प्रॉफिट परसेंट इज 25, प्रॉफिट परसेंट कितना दिता है 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट हुंदा की है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, यह आ गया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
25 upon 100 is equal to profit is 210 ਤੇ cost price ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ cost price 210 into 4 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 840 cost price ਕਿੰਨੀ ਹੈ 840 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ selling price 210 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਤੇ 840 ਦੇ ਵਿੱਚ 210 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ 840 cost price है जे आप 210 रुपए ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1050 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪਨ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ 100 ਉਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਈ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ the cost price of 18 articles is equal to selling price of 15 articles the gain ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ profit ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 15 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ difference in number of articles ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ articles ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ cost price of m articles is equal to selling price of n articles ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ profit or loss percent ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ difference in number of articles divided by selling articles ठीक है difference in number of articles divided by number of selling articles into 100 into ਕੀ ਆਏਗਾ 100 क्योंकि परसेंटेज काटते हैं परसेंटेजली इनटू 100 करना ही पड़ेगा तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हुन अपन पता किवें लगेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है देखो 18 आर्टिकल खरीदे ते 15 आर्टिकल बेचे 18 खरीदे ने ते बेचे किन्ने ने 15 एदा मतलब 3 आर्टिकल्स तुहाडे कोल बच गए एदा मतलब की है प्रॉफिट कितना 3 आर्टिकल्स का डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा 3 डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा 3 सेलिंग आर्टिकल्स किन्ने ने 15 इंटू 100 3 5 जा 15 5 20 जा 100 एदा मतलब प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट कितना है 20% ठीक है ते हुन आपां अगला क्वेश्चन देखदे हां नेक्स्ट क्वेश्चन है the cost price of 20 articles is equal to selling price of 15 articles ठीक है cost price of 20 articles is equal to selling price of 15 articles इत्थे profit कितना हो रहा है 5 articles दा selling articles किन्ने ने 15 ते into 100 कर देने 100 upon 3 कितना आ जाएगा 33 1/3% देखो 100 upon 3 कितना होता है 33 1/3% ते दा आंसर आ जाएगा 33 1/3% हुन जेकर तुहानू यह कांसेप्ट याद है जेकर तुहानू यह कांसेप्ट याद है तो तुसी यह क्वेश्चन ओरली कर सकते हो ये क्वेश्चन ओरली किया जा सकता है क्योंकि सीधी जी गल है 5 आर्टिकल्स का प्रॉफिट किन्ने पिछे 15 पिछे 5 upon 15 into 100 5/15 कितना होंदा है 1/3 तो 100 upon 3 कितना हो जाएगा 33 1/3% हुन अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन if I purchased 11 books for ₹100 and sold 10 books for ₹110 the percentage of profit per book sold is ठीक है 11 किताबां 100 रुपए दियां खरीदियां ते 10 किताबां 110 रुपए दियां बेचदियां the percentage of profit per book कितना प्रॉफिट होएगा एक किताब दे मगर हुन एदे विच की हुंदा है कि 11 बुक्स खरीदियां 100 रुपए दियां ते 10 बुक्स बेचियां ने 110 रुपए दियां आपां बुक्स दा नंबर सेम बना लईए इत्थे 11 ते इत्थे 10 इनू 10 नाल गुना कर दईए ते इनू 11 दे नाल ए भी 110 हो जाएगा ए भी 110 हो जाएगा ते आपां लिखदे हां cost price of 110 books जे 11 बुक्स दा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ते 110 दा मींस 10 गुना ते यह कितना हो जाएगा 1000 ठीक है ते सेलिंग प्राइस ऑफ 110 बुक्स इत्थे 10 सी 10 नु कितना मल्टीप्लाई किया 11 दे नाल ते भी 11 दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस 1210 ते प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है देखो दोनों नु माइनस करो ते 210 रुपए का आपां की कढना है प्रॉफिट परसेंट 210 अपॉन किन्ने पीछे 1000 पीछे डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस दे नाल इनटू 100
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 21%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21%। आंसर आ जाएगा 21। देखो इत्थे 11 बुक्स खरीदियां ने ते 10 बुक्स बेचियां ते इनू मैं मल्टीप्लाई करता 10 दे नाल ते ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 दे नाल ते 110 बुक्स दी कॉस्ट प्राइस आई 1000 रुपया। इत्थे 10 बुक्स बेचियां सी 11 नाल मल्टीप्लाई किया, यह बुक्स कितनियां आईयां 110। 110 बुक्स किन्ने दियां बेचियां, इत्थे भी 11 नाल गुना कर दांगे 1210 दा। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है 1210, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुंदा है सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिहदे ते आपां कोई चीज खरीददे हैं ते सैलिंग प्राइस जिहदे ते आपां चीज बेचदे हैं। ते दोनों दा डिफरेंस करांगे, जे एसपी ग्रेटर होएगा कॉस्ट प्राइस तो तां की होएगा प्रॉफिट होएगा। ते अपने कोल प्रॉफिट सी 210 रुपए दा ते प्रॉफिट परसेंट सी इत्थे 21%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल मार्क्ड एट ₹200। ठीक है, मार्क प्राइस एक लिस्ट प्राइस हुंदा है जिहड़ा दुकानदार तुहानू कहंदा जी ये चीज 200 रुपए दी है, इहदे ते ओह कितना डिस्काउंट दे रहा है 10%। जे ते 10% डिस्काउंट 200 दा 10% कितना हुंदा है 20 रुपए। ठीक है, 200 दा 10% कितना हुंदा है 20 रुपए। 20 रुपए डिस्काउंट मिल गया इहदे ते, मींस कि ओह चीज किन्ने दी रह गई 180 रुपए दी। अगे फिर वो तुहानू 15% डिस्काउंट दे रहा है। 180 दा 15% कितना हुंदा है, देखो 5 दे नाल कटिंग कीती 9 दे नाल 27 रुपए। 27 रुपए तुहानू होर डिस्काउंट मिल गया, मींस 200 रुपए दी चीज सी 200 ते पहला 20 रुपए डिस्काउंट मिला ते फिर 27 रुपए डिस्काउंट मिला। अगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही स्पेंट ₹7 ऑन ट्रांसपोर्ट। 7 रुपए दा उत्ते खर्चा करता। तो कॉस्ट प्राइस देखो किन्ने दी पै रही है 200 दे विचों 20 घटा दांगे, फिर -27 + 7 20 ते यह कितना आ रहा है 160। किन्ने दा टेबल पै रहा है 160 रुपए दा। ते एंड सोल्ड द टेबल ऑन ₹208। तो बेच किन्ने दा रहा है 208 रुपए दा। 160 रुपए दी चीज नू 208 रुपए च बेच लिया, ਇਹਦਾ मतलब 48 रुपए दा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 48। 160 रुपए दा खरीदया ते 208 रुपए दा बेचता तो 48 रुपए दा प्रॉफिट हो रहा है। ते जेकर आपां प्रॉफिट परसेंट कढीए तां किहदे ते होएगा कॉस्ट प्राइस दे उत्ते इनटू 100। 16 + 48 ते यह कितना आ गया 30%। तो कितना प्रॉफिट परसेंट होएगा 30%। 30% आपां नू प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 200 रुपया मार्क प्राइस सी, जे ते 10% ऑफ मिलके वो चीज होगी 180 दी। 180 ते फिर तुहानू 15% ऑफ मिलिया, मीन 27 रुपए होर घट गए, लेकिन 7 रुपए तुसी ट्रांसपोर्ट ते भी खर्चे वो ऐड हो जाएंगे ते कॉस्ट प्राइस पै जांदा है 160 रुपए। 160 रुपए दा तुहानू टेबल पिया ते तुसी बेच रहे हो 208 रुपए दा, ਇਹਦਾ मतलब 48 रुपए दा मुनाफा हो रहा है। 48 रुपए दा जदों आपां परसेंटेज दी गल करिए ते परसेंटेज किते कढनी हुंदी है कॉस्ट प्राइस ते। तो 48/160 * 100 दा मतलब है 30%। हुण आपां एक होर क्वेश्चन करदे हां। यह क्वेश्चन बड़े बड़े डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे विच आया है। एक क्वेश्चन की है अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 30%, 20%, 10%। देखो अपने को नेट परसेंटेज दा एक फॉर्मूला हुंदा है A + B + AB/100। यह सिर्फ 2 ते ही कड्डी जा सकती है, इत्थे कितनी है 3। हुण यह डिस्काउंट की गल हो रही है, डिस्काउंट की गल हो रही है। डिस्काउंट लिए आपां ले लैंदे आ, जदों डिस्काउंट की गल करिए तां नेट परसेंटेज आपां ले लैंदे आ A + B - AB/100। ठीक है, यह आ जाएगा। देखो पहला 30 + 20 - 600/100 कितना आ गया 50 चों 6 घटा दो 44%। कितना आ गया 44%। हुण 44% दे उत्ते 10% एक होर है, ते आपां की करांगे 44 + 10 - 440 मींस ओही फॉर्मूला दुआर तो फिर एक बारी लगाया। पहला एक बारी लगाया क्योंकि 2 ली हुंदा है फॉर्मूला, इत्थे तीजी एक आइटम होर सी ते इसलिए 3 बारी चीजां वा तो 2 बारी यह फॉर्मूला लगेगा। 4.4 54 दे विचों कितना माइनस करना है 4.4 की आएगा 49.6%। 49.6% यह आंसर आएगा। ਇਹਦਾ मतलब जे थोड़ी मार्केट दे विच तुसी सेल पढ़ रहे हो 30 + 20 + 10 ਇਹਦਾ मतलब 60%। 60% ਦੀ डिस्काउंट नहीं है, यह 30% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੇ 30% ਆਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, 70 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, 70 ਤੇ 20% ਮੀਨਸ 14 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਹੋਰ
डिस्काउंट मिलेगा। जेकर आपां फार्मूले नाल करना है तां a + b + ab अपॉन 100 ਇਹ ਨੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, a b ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a + b - ab अपॉन 100 ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 44%, ਫਿਰ 44% ਤੇ 10% ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 49.6%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜੇ 30 + 20 + 10 ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 49.6% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ EW ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ खूब दिल लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू।